Hello friends. Now we are started session number 6C, chapter 5, Origin and Evolution of Life. So now in modern synthetic theory of evolution, the last sessions are left. This session, the topic is called as isolation. So now in this session we are complete about isolation and completed modern synthetic theory of evolution. So modern synthetic theory of evolution based on the main three process: gene variation, natural selection and isolation. So first two concepts, gene variation and natural selection, we are already completed in a last session 6A and in 6B. So today we have studied about isolation, the 6C session in the modern synthetic theory of evolution. So what is isolation? Isolation means separation of species. Separation of species or population of particular species in a smaller unit and which prevent interbreed between them, and it is responsible for the isolation. So in simple word, isolation means the separation of population of the particular species in a very small units. As a result, because of separation they cannot interbreed to each other. आइसोलेशन का सिंपल मीनिंग क्या है? जो पॉपुलेशन में पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो सेपरेशन होता है पॉपुलेशन में स्पीशीज़, ये मान लिए कि बड़ी से टाइगर फैमिली की स्पीशीज़ है. टाइगर्स आर वो मेनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइबेरिया. उन्होंने अक्रॉस किया हिमाचल प्रदेश हिमालय. देन इन इंडिया में वो बंगाल टाइगर बन गया, उसकी साइज शेप बदल गया. ओके, इंडो चाइना है. So the different species are found in the world at a different region. So but their origin of the species, their main ancestor is common. So these species, their population separated in the many subunits. Because of this separation of the particular species, they cannot interbreed to each other because they later on they change their habitat, their structure, and they become a different species. This concept is called as isolation. Isolation में ऐसा ही है, एक ओरिजिनल स्पीशीज रहती है मगर आगे जाके वो डिवाइडेड होती है सब स्पीशीज में, सबकी हैबिट स्ट्रक्चर सब बदल हो जाता है एंड दे कैनॉट इंटरब्रीड, एक दूसरे को इंटरब्रीड नहीं कर सकते. एंड द स्पीशीज जो सेपरेटेड हुई, ईच स्पीशीज ईच वेराइटी डेवलप इनटू द न्यू स्पीशीज. ओके, द आइसोलेशन ऑकर बिकॉज ऑफ किसके से आइसोलेशन होता है? बिकॉज ऑफ सम बैरियर्स, माउंटेन, रिवर, आइलैंड, ग्लेशियर्स. बिकॉज ऑफ दिस बैरियर्स द नंबर ऑफ स्पीशीज आर सेपरेटेड एंड दिस बैरियर प्रिवेंट द जीन फ्लो और एक्सचेंज बिटवीन जीन. तो ये जो बैरियर आते हैं, अभी मान लिया कि पहले जाके इन एंशिएंट टाइम ऑल आइलैंड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, बाद में यूरेशिया, लॉरेशिया, ये आइलैंड सब सेपरेट हो गए. उसके से क्या हुआ, जो सेपरेट आइलैंड्स हुए उनके उस पे स्पीशीज जब फंस गई, इट बिकम कम्प्लीटली डिफरेंट स्पीशीज. ओके, सो नाउ बिकॉज ऑफ बैरियर, अभी मान लिया कि पर्टिकुलर एक आइलैंड बन गया, वहाँ पे वो स्पीशीज अटक गई और बीच में बैरियर से वाटर का, तो यहाँ का स्पीशीज दूसरी तरफ नहीं जा सकता है. सो दे कैनॉट इंटरब्रीड टू ईच अदर. इसकी वजह से क्या होगा? देयर इज अ नो जीन फ्लो. ओके, उनमें दोनों में जीन्स अदला बदल नहीं होगी एंड दे स्पीशीज बिकम आइसोलेटेड. ओके, अभी माउंटेन है, माउंटेन कुछ क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डिपेंड्स, नहीं कर सकते तो जो स्पीशीज फंस गई उस साइड में, इट बिकम आइसोलेटेड, दे कैनॉट इंटरब्रीड. इसकी वजह से जीन फ्लो भी नहीं होगा, मीन जीन्स एक्सचेंज भी नहीं होंगे उस स्पीशीज में, एंड बोथ स्पीशीज, बोथ द वेराइटी बिकम डिफरेंट स्पीशीज. Okay, number of isolating mechanism of operated in the nature. Okay, and it is responsible for the diversion and speciation may occur. So number of factors, nature में बहुत सारे factors है isolation के, mechanism, operative mechanism है, and these are the, now in this topic we are studied about only two mechanism. Okay, once again I will repeat.
सो नंबर ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स आर ऑपरेटेड इन द नेचर. नेचर में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है जिसकी वजह से स्पीशीज़ आइसोलेटेड हो जाती है, बहुत सारी वेराइटी आइसोलेटेड हो जाती है और नए स्पीशीज़ डेवलप करते हैं. तो उसमें पहला मैकेनिज्म है, द फर्स्ट आइसोलेशन मैकेनिज्म इज अ geographical isolation, and second one is a reproductive isolation. So in geographical isolation, now what is geographical isolation? It is a physical isolation. Okay, so in geographical isolation, because of mountain, glaciers, river, islands, the species, the variety become separated, the population get separated, and each separated species they cannot interbreed to each other and to forms new species. तो जो वेराइटी थी, जो पॉपुलेशन थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन, वो डिवाइडेड किस में होगी, बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ में. ओके, उनका क्या होगा, डाइवर्जिवन हो गया बिकॉज ऑफ फिजिकल आइसोलेशन. फिजिकल आइसोलेशन मीन्स जियोग्राफिकल आइसोलेशन लाइक रिवर, ओशन, माउंटेन्स, ग्लेशियर एट्सेट्रा. एंड जो सेपरेटेड स्पीशीज हुई है, दे कैनॉट इंटरब्रीड, एज ए रिजल्ट they forms a new species, new variety. Okay, and this barrier, जो barrier है, river, ocean, mountains, glacier, they prevent interbreeding. वो क्या prevent करती है, interbreeding between isolated groups. Okay, and now the isolated, जो भी isolated हुआ इस छोटे छोटे इस फैक्टर में, they develop a new traits, कुछ ऐसे अलग अलग कैरेक्टर बनाते हैं, उसकी वजह से नए स्पीशीज डेवलप होते हैं. ओके, सो दे डिस्टिंक्ट जीन पूल. बाद में बहुत सालों के बाद जाके उनमें नया जीन पूल डेवलप होता है जो अपने ओरिजिनल स्पीशीज से कम्प्लीटली अलग रहता है, एंड दे कैन नॉट इंटरब्रीड टू ईच अदर. सो नाउ एग्जाम्पल इज अ डार्विन फिंचेस बर्ड. सो इन गैलापागोस आइलैंड्स, डार्विन ने देखा था कि ओरिजिनल स्पीशीज है फिंचेस बर्ड की. But now this original species isolated, गैलापागोस आइलैंड्स में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. जो फिंचेस बर्ड था, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ऑन द डिफरेंट आइलैंड्स, गैलापागोस आइलैंड पे छोटे छोटे आइलैंड है, उस आइलैंड पे फूड अवेलेबिलिटी अलग अलग थी. अभी एक आइलैंड पे बहुत सारे ग्रेन मिल रहे थे, एक आइलैंड पे इंसेक्ट मिल रहे थे, एक आइलैंड पे नेक्टर्स मिल रहा था. So because of this all availability of food, the species, जो फिंचेस बर्ड की जो स्पीशीज है, they change their beaks and structure. जिसको इंसेक्ट मिला उसकी चोंच पतली हो गई, जिसको नेक्ट्रिस मिल गया उसकी चोंच लंबी पतली एकदम लंबी हो गई. ओके, जिसको ग्रेन मिला उसकी चिड़िया जैसी हो गई. मीन्स आप लोग देख सकते हैं their color, their beak structure completely change on the basis of availability of food. Finally, from the original species, जो original population थी, उससे बहुत सारी species क्या हो गई, divided, diverted हो गई, and finally they develop into the new species. New species क्यों develop हुई, because of geographical isolation. उनको फूड अवेलेबिलिटी अलग था, अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड मिल गए. बाद में जाके कुछ सालों के बाद दे कैनॉट इंटरब्रीड, एक दूसरे से जीन पूल स्ट्रक्चर अलग हो गया. दे कैनॉट इंटरब्रीड, हर एक की हैबिट अलग होगी, फूड हैबिट अलग होगी. फाइनली डेवलप अ न्यू सब स्पीशीज. ओके, सो आप लिख, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डार्विन फिंचेस बर्ड. सेकेंड वन इज अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. अभी नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. मैं आपको जियोग्राफिकल आइसोलेशन में बताया कि माउंटेन, ग्लेशियर से लेके रिवर से लेके ये क्या करते हैं, स्पीशीज़ को, स्पीशीज़ को, मेन पॉपुलेशन स्पीशीज़ को क्या, पॉपुलेशन को डिवाइडेड कर देती है सब स्पीशीज़ में. बट नाउ इन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, सो देर इज अ सम जेनेटिक मटेरियल्स आर चेंज, जीन पूल आर चेंज और जेनेटल ऑर्गन्स आर चेंज. बहुत सारे स्पीशीज जो सेपरेटेड हुई उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है, जीन पूल अलग हो जाता है, या उनका जेनेटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है. सो दे आर कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. एज अ रिजल्ट दे कैनॉट इंटरब्रीड टू ईच अदर एंड इट प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग. अभी मान लिया कि आप लोगों ने एक बर्ड्स देखा, तो
बर्ड्स का आवाज़ चेंज हो गया, उसकी फीमेल को बुलाने की आदत चेंज हो गई, फूड हैबिट चेंज हो गई, तो वो स्पीशीज़ वही स्पीशीज़ नहीं रहती, इट डिवाइडेड इनटू द अदर सब स्पीशीज़। ओके, इन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में ऐसा है कि जीन स्ट्रक्चर, जीन पूल और उसका जेनाइटल ऑर्गन चेंज हो गया, सो दे कैन नॉट इंटरब्रीड। अभी बर्ड से उसने आवाज़ चेंज कर दिया, उसने आदत चेंज की, उसने कलर चेंज कर दिया, तो उस ओरिजिनल पॉपुलेशन की स्पीशीज़ को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता। मीन वो स्पीशीज़ कैसे हो गई? चेंज, देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑल्सो बिकम चेंज, क्योंकि दोनों का जो मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन का, अट्रैक्ट करने का, वो कैसे हो गया? चेंज हो गया। ओके, सो नाउ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट वन इज अ प्री मेटिंग और प्री ज़ाइगोटिक आइसोलेशन। सो प्री मेटिंग आइसोलेशन प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन एंड ज़ाइगोट फॉर्मेशन। ये जो मैकेनिज्म है ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, होने ही नहीं देता है, एंड ज़ाइगोट फॉर्म नहीं होता है। ओके, दे आर फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट वन इज अ हैबिट आइसोलेशन। देखो यहाँ पे टाइप ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स आर टू टाइप, प्री मेटिंग एंड पोस्ट मेटिंग। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्री मेटिंग, या उसको प्री ज़ाइगोटिक आइसोलेशन बोलते हैं। सो इन प्री मेटिंग द फर्स्ट टाइप इज अ हैबिट आइसोलेशन। ओके, द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन द सेम जियोग्राफिक रीजन। मेंबर ऑफ पॉपुलेशन में ये उसी पॉपुलेशन की स्पीशीज एक ही एरिया में रहे, दे लिविंग इन द सेम जियोग्राफिकल रीजन बट ऑक्यूपाई सेपरेट हैबिटेट, सो दे कैनॉट इंटरब्रीड टू ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड एज अ हैबिटेट आइसोलेशन। एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे बट उनमें क्या चेंजेस आ गया? दे ऑक्यूपाई डिफरेंट सेपरेट हैबिटेट, उनका हैबिटेट चेंज हो गया। सो मान लिया कि दो बर्ड्स है, तो एक बर्ड्स एकदम टॉप पे टिप पे रह रहा है, एक बर्ड्स बॉटम में रह रहा है ग्राउंड लेवल पे, तो दोनों का मिलाव नहीं होगा, दे कैन नॉट इंटरप्रेट एंड बोथ दिस टू स्पीशीज बिकम कम्प्लीटली आइसोलेटेड। उसको बोलते हैं हैबिट आइसोलेशन। पाए जाते एक ही जियोग्राफिकल लोकेशन पे, मगर दोनों का हैबिटेट कैसे होगा? एक का तो एकदम टिप पे प्लांट के ऊपर, एक तो ग्राउंड पे, तो दोनों का हैबिट कैसे हो गया? चेंज। तो इसके से प्रायोरिटी क्या होगा? दे कैन नॉट इंटरब्रीड, सो दीज आर कॉल्ड एज अ हैबिटेट आइसोलेशन। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व इन दिस प्री मेटिंग आइसोलेशन में हैबिटेट आइसोलेशन। देखो, लायन लिव इन अ सवाना, दोनों का जो एंसेस्टर था वो कॉमन था, सेवर टूथ कैट। टाइगर लाइव इन द लैंड, सवाना मीन्स ग्रासलैंड जहाँ पे रहती है वहाँ पे लायन रहता है। टाइगर कहाँ पे रहता है? लैंड पे रहता है। जहाँ पे ग्रासलैंड है वहाँ पे लायन पाया जाता है, वहाँ पे शेर कम पाए जाते हैं। मगर जो लैंड हैबिटेट है कम्प्लीटली, जहाँ पे ग्रासेस नहीं है वहाँ पे भी लायन रहता है। दोनों की हैबिट कैसे हो गई? चेंज, फिजिकल बैरियर आ गया। ओके, मगर दोनों के एंसेस्टर पहले कॉमन थे। सो आगे जाके दोनों में इतने बदलाव आ गए, दे बिकम टू डिफरेंट स्पीशीज। इसको हैबिटेट आइसोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबिटेट आइसोलेशन। दोनों की हैबिट कैसे हो गई? चेंज हो गई, सो दे कैन नॉट इंटरब्रीड। सेकंड इज सीजनल। प्री मेटिंग आइसोलेशन में सेकंड टाइप है सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन। सो व्हाट इज सीजनल आइसोलेशन? सो ना आप लोग, मैंने आपको यहाँ पे दो फ्रॉक की वेराइटी देखी। ओके, द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन द सेम जियोग्राफिक रीजन, दोनों एक ही जियोग्राफिकल रीजन में रह रहे हैं बट दे अटेन मैच्योरिटी एट डिफरेंट टाइम। दोनों की जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो अटेन डिफरेंट टाइम पे होने लगी, डिफरेंट मंथ में होने लगी, डिफरेंट ईयर में या डिफरेंट सीजन में। सो दे कैनॉट इंटरब्रीड टू ईच अदर, सो सच काइंड ऑफ आइसोलेशन इज कॉल्ड एज अ सीजनल और टेम्परल आइसोलेशन। देखो यहाँ पे दो फ्रॉक स्पीशीज है, दोनों के हैबिटेट सेम है। ओके, इन सेम जियोग्राफिक रीजन में पाए जाते हैं बट उनकी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है, इनके महीना, इनका साल, इनका सीज़न कम्प्लीटली अलग है। इसकी वजह से दोनों फ्रॉग एक दूसरे को इंटरप्रेट्स नहीं कर सकते। तो सच काइंड ऑफ आइसोलेशन इज कॉल्ड एज अ सीजनल आइसोलेशन। नाउ इन प्री मेटिंग आइसोलेशन में नेक्स्ट है इथोलॉजिकल आइसोलेशन। बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर, चेंजेस इन स्पेसिफिक mating behavior, the population, the member of population do not interbreed to each other। अभी देखो इथोलॉजिकल आइसोलेशन में क्या है? दोनों का स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर है, इट बिकम कम्प्लीटली डिफर। आप लोग यहाँ पे बर्ड्स के डायग्राम देख रहे हैं,
तो यहाँ पे बर्ड्स का जो आवाज़ निकालने का तरीका है, ओके, तीनों बर्ड्स का कैसे अलग है। उनकी पॉपुलेशन पहले एक ही थी, एक ही स्पेशीज से ओरिजिनेटेड हुए, मगर ऑलमोस्ट ऑल द स्पेशीज लुक एग्जैक्ट सेम। सब तीनों स्पेशीज कैसे थे, एग्जैक्टली सेम, बट डू नॉट इंटरबिट ड्यू टू द डिफरेंट इन मेटिंग सॉन्ग। तीनों दिख रहे हैं तो एक ही जैसे, इथोलॉजिकल आइसोलेशन, मगर उनमें क्या हुआ फ़र्क, जो उनका वो इंटरबिट नहीं कर सकते तीनों स्पीशीज, क्योंकि उनका जो मेटिंग सॉन्ग है, ओके, वो कम्प्लीटली डिफर है। डिफर मीन्स एक दूसरे को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते। उसका मेटिंग सॉन्ग अलग है, इसका मेटिंग सॉन्ग है अलग है, उसका मेटिंग सॉन्ग अलग है। इसकी वजह से एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। तो दिस काइंड ऑफ आइसोलेशन इज कॉल्ड इथोलॉजिकल आइसोलेशन। व्हाट इज इथोलॉजिकल आइसोलेशन, वापस बताता हूँ। ड्यू टू द स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर, द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट मेट। उनका जो मेटिंग बिहेवियर है, स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर, ये मेंबर का पॉपुलेशन का कैसा रहता है, सबसे अलग। तो ये दिखने में सेम दिखती है, मगर हर एक का मेटिंग बिहेवियर कैसा है, डिफरेंट है। सो दे कैन इंटरब्रीड एंड दे बिकम आइसोलेटेड स्पीशीज। दीज आर कॉल्ड एज अ ethological isolation. So now next one is in pre-mating. Fourth type is a mechanical isolation. So now in mechanical isolation, the two population have different in structure and reproductive organs. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पोलर बियर है और ये खोया करके स्पीशीज है। दोनों के एंसेस्टर कॉमन थे, मगर उनका स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कम्प्लीटली डिफरेंट है, और डिफरेंट होने की वजह से दे कैन नॉट इंटरब्रीड। पोलर बियर, ब्राउन बियर, ये पांडा एक ही फैमिली में आते, मगर उनके स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो दे कैन नॉट इंटरब्रीड। सो दीज आर कॉल्ड एज अ मैकेनिकल आइसोलेशन। इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल आइसोलेशन। सो इन प्री मेटिंग आइसोलेशन में हम लोगों ने प्री मेटिंग आइसोलेशन में कितने टाइप देखे। हैबिटेट आइसोलेशन, हैबिटेट चेंज होती है, सो दे कैन नॉट इंटरप्रेट ईच अदर। सीजनल में सीज़न चेंज होता है, दो मैच्योरिटी अलग अलग सीजन में होती है, सेक्शुअल मैच्योरिटी, सो दे कैन नॉट इंटरप्रेट। थर्ड, इथोलॉजिकल आइसोलेशन, उनका मेटिंग बिहेवियर अलग हो जाता है, स्ट्रक्चर सेम है बट देयर मेटिंग बिहेवियर कम्प्लीटली डिफरेंट, सो दे कैन नॉट इंटरप्रेट टू ईच अदर। इन मैकेनिकल आइसोलेशन, यहाँ पे देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कम्प्लीटली बिकम different, so they cannot interpret to each other. All these are the four types including pre-mating barriers. तो उसको क्या बोलेंगे, pre-mating isolation. So now next topic is a post-mating isolation. So in post-mating, first one is a gamete mortality. Okay, gamete mortality means gamete are the sperms in male and ovum in the female. So these are the common in all animals. Okay, so gamete mortality means the gamete do not occur in the given time. दोनों gamete एक ही टाइम पे डेवलप नहीं होते। एज ए रिजल्ट gamete mortality में सभी स्पर्म डेवलप हुए तो वहाँ पे ओवम मैच्योर नहीं रहता है, तो स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। कभी क्या होता है, ओवम मैच्योर है, स्पर्म डेवलप नहीं होते। सो दीज आर कॉल्ड एज gamete mortality। इसके से दोनों का रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। सेकेंड इज zygote mortality, फर्टिलाइजेशन होता है। पहले गैमेट मोर्टेलिटी में देयर इज नो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों की मैच्योरिटी है स्पर्म और ओवम की, वो डिफरेंट टाइम पे। ज़ाइगोट मोर्टेलिटी में फर्टिलाइजेशन हो गया है, बट ज़ाइगोट कैसे रहता है, ज़ाइगोट डाई, फर्टिलाइजेशन इज ऑकर बट ज़ाइगोट इज मॉर्टल मीन्स मरा हुआ डेवलप होता है। सो इट कैनॉट ग्रो इन टू द एम्ब्रियो, तो इसको ज़ाइगोट मोर्टेलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड स्टरल, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, एम्ब्रियो भी डेवलप हो गया, मगर जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया इट इज़ स्टराइल इन नेचर। एग्जाम्पल, हॉर्स और डॉन्की का फर्टिलाइजेशन हो गया, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो गया, मगर उनको बच्चा हुआ म्यूल, तो वो तो नेचुरली क्या है, स्टराइल। ओके, स्टराइल हो मीन्स दे कैनॉट प्रोड्यूस यंग वंस, तो जो खच्चर है वो नए यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो सो दीज आर कॉल्ड एज हाइब्रिड स्टरलिटी। तो इसमें पोस्ट मेटिंग में पहला देखा हम लोग गैमेट मोर्टेलिटी, सो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है क्योंकि स्पर्म और ओवम अटेन देयर मैच्योरिटी एट डिफरेंट टाइम। ज़ाइगोट मोर्टेलिटी में फर्टिलाइजेशन इज ऑकर बट ज़ाइगोट इज मॉर्टल, मरा हुआ डाई होता पैदा। हाइब्रिड स्टरलिटेशन में फर्टिलाइजेशन इज ऑकर, एम्ब्रियो इज ऑल्सो डेवलप बट द प्रोजेनी विल प्रोड्यूस
दिस द प्रोजेनी विल बी स्टराइल, वो यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते. एग्जाम्पल हॉर्स एंड डोंकी क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूल. म्यूल इज अ स्टराइल एनिमल्स. ओके, सो आज के लिए इतना ही है. थैंक यू, टेक केयर एंड वी आर कंप्लीटेड. कौन सा हम लोगों ने? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन.